morning, children. Myself, Harish sir is there. In consequence of study reading, we read further. Before reading the syllabus, first we have to know that what will be asked in the examination that will be held tomorrow. You have to prepare first lesson of Flamingo, name last lesson. First lesson of Vistas, third lesson. And first lesson of poetry, my mother at 66. Only 3 lessons you have to watch the imminent events that have been occurred in that particular lesson. You have to appear in exam and solve the question in multiple choice. Therefore, no need to write. Okay? Now you will read the further the evening in consequence of our study reading. We shall read that how Dr. Sadao had searched the bullet that had been emitted in the body of now read the further. The man sank again into silence so profound that Sadao took up his wrist, hating the touch of it. थोड़ी सी हरकत करने के पश्चात फिर वो व्यक्ति खामोश हो गया और डॉक्टर सदाओ नफरतपूर्ण अंदाज में उसकी कलाई पकड़ा और ऊपर की उठाया। कहता है कि the man sank again into silence so profound that Sadao took up his wrist, hating the touch of it. Yes, there was still a pulse, so faint, so feeble, but enough. If he wanted the man to live, to be home. हाथ उठा करके कलाई पकड़ करके उसकी नब्ज को देखता है कि नब्ज चल रही है कि नहीं चल रही है। डॉक्टर सदाओ ये पाता है कि नब्ज तो चल रही है लेकिन धीमी चल रही है और इस निर्णय पर पहुंचता है कि अगर इस आदमी को जिंदा करना है, जिंदा रखना है तो इसके लिए इतना पर्याप्त है, इतनी नब्ज का चलना जो है काफी है। But certainly I don't want this man to live, he thought. लेकिन उसके मन में तभी एक विचार आया कि वो नहीं चाहता है कि ये व्यक्ति जो है जिंदा हो जाए। No more anesthetic, he told Hannah. उसके पश्चात वो अपनी पत्नी हना से कहा कि अब ज्यादा एनेस्थेटिक की जरूरत नहीं है, काम भर के लिए एनेस्थेटिक इसको दे दिया गया है। And after procuring the anesthetic, I am able to operate this one. He turned as swiftly as thought he had never paused, and from his medicines he chose a small valve and from it filled the hypodermic and thrust it into the patient's left arm. जहाँ उसकी दवाएं रखी गई थी उसमें से एक छोटी सुई की शीशी जो है वो ढूंढ निकालता है, इंजेक्शन में भरता है और उसको उसकी दाहिनी बांह में लगा देता है। इंजेक्शन लगाने का क्या रिजल्ट होता है देखो। Then putting down the needle,
he took the wine press again. सुई को नीचे रखते हुए वो पुनः उसकी कलाई पकड़ लेता है और नब्ज को चेक करने लगता है कि आखिर इस इंजेक्शन का कोई असर हुआ कि नहीं हुआ। The pulse under his finger fluttered once or twice and then grew strong. उसकी नब्ज जो है उसके उंगलियों के नीचे एक दो बार फड़फड़ाई और निरंतर तेज होती चली गई, मजबूत होती चली गई। Now read the next stanza. This man will live in spite of all, he said to Anna and sighed. उसने अपनी पत्नी से एक आस भरते हुए कहा, ये व्यक्ति बच जाए, जिंदा हो जाए। The young man woke, so big his blue eyes, so terrified when he perceived where he was, that Anna felt compelled to apologize. उस बेहोश व्यक्ति को होश आता है जब वो देखता है अपने आप को कि वो कहाँ पे, तो उसकी आंखों में एक भय सा समा जाता है। तुम सही कल्पना इसकी कर नहीं सकते। जब तक तुम अपने आप को उस इनमी की पोजीशन में नहीं रखोगे तब तक तुमको उस परिस्थिति का, उस डर का एहसास नहीं होगा। 18 साल का नौजवान इतना डरपोक नहीं होता है, वो भी सेना का नौजवान। लेकिन जरा सोचो कि उस नौजवान को बंदी बना लिया गया था, वो जहाज से भागा था, उसकी पीठ में गोली लगी थी, लहरों से टकरा करके वो घायल हो गया था और किसी जापानी डॉक्टर के हाथ लग गया। बेहोशी के दौरान वो रेत पे पड़ा हुआ था। डॉक्टर सलाह उसको देखता है, दया आ जाती है, एक इंसान होने के नाते वो अपने घर ले आता है, उसका ऑपरेशन कर देता है, वो बच जाता है, उसको होश आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में उस आदमी की मनोदशा क्या होगी? You can imagine it well if you keep yourself in that particular position. Hannah felt compelled to apologize. Hannah को लगा कि उससे गलती हो गई है और इसके लिए क्षमा मांगा। She herself served him, for none of the servants could enter the room. उसने खुद उसका परिचार किया, उसकी सेवा की। जो कुछ भी जरूरत थी, जो एक नर्स को करनी चाहिए, जो एक परिचारिका को करनी चाहिए, that act was done by Hannah herself. When she came in the first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful things. When she came in, जब वो कमरे में अंदर आई, the first time, पहली बार जब वो कमरे में आई, she saw him summoned his small strength to prepare for fearful things. तो क्या पाई? देखती है कि उस दुश्मन की पोजीशन ठीक उस तरह से है मानो वो बेजान अवस्था में भी, असहाय अवस्था में भी किसी भयानक चीज का सामना करने के लिए अपनी ताकत बटोर रहा है। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी ताकत को बटोर रहा है, किसी भयानक चीज का सामना करने के लिए डरा हुआ है, सामा हुआ है। Don't be afraid, she begged him softly. नारी सूरत कोमलता के साथ
हना उससे बोली, बच्चे डरने की कोई बात नहीं है, डरो नहीं। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश? ठीक है। उसने गटकते हुए, खूब गटकते हुए सांस ले, जैसे कोई चीज निकली जाए, थोड़ा सा मानो किसी चीज को निकल रहा, ऐसा करते हुए वो पूछता है हना से कि क्या आप अंग्रेजी बोल सकती हैं? यू स्पीक इंग्लिश? आई वॉज ए लॉन्ग टाइम इन अमेरिका से रिप्लाई। उसके प्रश्न पूछने पर डॉक्टर सदाव की पत्नी हना जवाब दी कि मैं लंबे समय तक अमेरिका में रही हूं, अमेरिका में रह के पढ़ाई की, तो दैट इज जेन्युइन दैट आई कैन स्पीक इंग्लिश। सवाल की बात है कि मैं अंग्रेजी बोल सकती हूँ। शी saw that he wanted to reply to that, but he could not. उसने देखा कि वो व्यक्ति उसके कहे हुए का जवाब देना चाहता, लेकिन वो नहीं पाया, दे नहीं पाया। And so he knelt and fed him gently from the Persiclean spoon. और उसने अनिच्छा से खाया, खाया तो अनिच्छा से, लेकिन खाया। उसके बाद से हना जो कि चम्मच से उसको खाना खिलाने लगी। मन नहीं करता। कभी तूने कटाई के अंतिम खरीदने गए हो, देखे हो बकरे के आगे दाना डाल दिया जाता है और वो बकरा भयभीत आंखों से अपने बिरादरी के किसी अन्य बकरे को करते हुए देखता है। ऐसी स्थिति में जिस दाने को अगर वो स्वतंत्र होता, उसके लिए छीना झपटी करता, वो उसके आगे पड़ा हुआ दाना अच्छा नहीं लगता है। ठीक इसी तरह की स्थिति उस दुश्मन की थी। इस समय अनिच्छा से खाया, लेकिन फिर भी जीने के लिए खाना तो जरूरी है ना, तो कुछ खाया। Now you will soon be strong, she said, not liking him, and yet moved to comfort him. पत्नी हना जो है उसको नापसंद करते हुए भी उसके दिल को मरहम लगाने के दृष्टिकोण बोली कि जल्द ही ठीक हो जाओगे, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। That's all for today. Thank you.